नमस्कार, स्वागत है सदन दिन भर में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। सदन के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था, लेकिन गतिरोध के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई और कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आगे बुलेटिन में देखेंगे दोनों सदनों में आज क्या कुछ हुआ, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। विभिन्न मुद्दों पर अवरोध को लेकर सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित, नहीं चला प्रश्नकाल और शून्यकाल। विपक्षी दलों के गतिरोध के कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। वक्फ विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति को रिपोर्ट के लिए बजट सत्र तक मिला समय। लोकसभा से समयावधि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित। पिछले सत्र के दौरान विधेयक पर चर्चा के लिए बनाई गई थी समिति। और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का सदस्यों से अनुशासन और संसदीय प्रक्रिया के नियमों का पालन करने का आग्रह। कहा, संसदीय अवरोध उपचार नहीं, एक बीमारी। नियमों से भटकाव लोकतंत्र के मंदिर का अपमान। और बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल पाई। विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यसभा में आज भी विपक्षी सदस्यों का गतिरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House. With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at point number 3 of serial number 1 in today's revised list of business. Thank you, sir. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that Lok Sabha at its sitting held on 27th November 2024 adopted the following two motions. One, that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the unexpired portion of the term of the committee. Vice Shri Krishan Lal Pawar resigned from Rajya Sabha with effect from 14th October 2024 and do communicate to this House the name of the member so nominated by Rajya Sabha. And two, that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to elect one member from amongst the members of Rajya Sabha to associate with the Committee on Welfare of other backward classes of the House for the unexpired portion of the term of the committee. Vice Shri Bida Mastan Rao Yadav resigned from Rajya Sabha with effect from 29/8/24 and do communicate to this House the name of the member so elected to the committee. सभापति ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधायी कामकाज के लिए समय आवंटन की जानकारी दी। The Business Advisory Committee in its meeting on 27th November 2024 has allotted time for government legislative business as follows. Consideration and passing of the following bills: the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024, 2 hours, along with the Boilers Bill 2024. 2. Consideration and passing of the following bills after they are considered and passed by Lok Sabha: the Banking Laws Amendment Bill 2024, 4 hours. The Railways Amendment Bill 2024, 4 hours. The Disaster Management Amendment Bill 2024, 5 hours. The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill 2024, 2 hours. Consideration and return of the Appropriation Bill relating to first batch of supplementary demands for grants for the year 2024-25 after it is considered and passed by Lok Sabha, 5 hours.
शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग को लेकर सदन की कार्यवाही में गतिरोध किया। सभापति ने सदस्यों से सदन के नियमों के उच्चतम मानकों का पालन करने की अपील की। गतिरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। The House stands adjourned to meet at 12 noon today. सभापति जगदीप धनखड़ ने पहले स्थगन के बाद जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अपनी सीटों से आगे आकर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। सभापति ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करने की अपील की। Yesterday marked a historic milestone, the beginning of the final quarter century before our constitution turns 100. This was a moment for our House of Elders, guided by the spirit of nationalism, to send a powerful message of hope to 1.4 billion people, reaffirming our commitment to their dreams and aspirations and our journey towards Viksit Bharat 2047. It is with deep concern, I must say, we missed the historic opportunity where there should have been productive dialogue, constructive engagement, echoing the collective aspirations of our people. We fell short of their expectations. Honorable members, this chamber is more than just a house of debate. Our national spirit has to echo from here. Parliamentary disruption is not remedy, it's a melody. It weakens our foundation. It slides Parliament into irrelevance. We must continue to have our relevance. Honorable members, when we engage in this kind of conduct, we deviate from constitutional ordainment. We show our back to our duties. If Parliament strays from its constitutional duty to represent people's hopes and aspirations, it is our duty to nurture nationalism, further democracy. I urge you all to embrace the spirit of meaningful dialogue. Let us return to tradition of thoughtful discussion. सभापति की अपील का विपक्ष के सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ तो सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। I plead with you, I request you for cooperation. Allow me to take agenda of the day. Be assured you shall have opportunity to raise all issues. Parliament is a platform for productive discussion. Every time is no. Question hour is important. I have already taken a call. He was not present. No, Honorable LOP was not there. Please make him aware of my ruling. I have already declined having taken a view. I cannot allow this House to get into irrelevance. We should not dishonor the spirit of those who gave us this constitution. No. There is no reason for us not to proceed with the House. Sorry. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 29th November 2024. राज्यसभा में अवरोध के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सदस्यों से संसदीय प्रक्रिया के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। सभापति ने कहा कि संसदीय अवरोध कोई समाधान नहीं है, यह एक रोग है जो हमारी लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। यह संसद को अप्रासंगिकता की ओर ले जाता है। I am unable to accept them and they are hereby declined. We persuade the chair historically only by exhibiting highest standard of conformity to the rules. And as I indicated yesterday, the ruling of the chair
must evoke deference and not a challenge. And I'm sure rules are so comprehensive that they enable every member of parliament to contribute. Let me advert for a moment. During last session, we had the occasion to make allocation of time, and we failed to utilize the time because of want of speakers. And therefore, there can be no grievance at all to voice your concerns, but in accordance with rules. If we start having a practice my way or no way, that is not only not democratic, that will pose a great challenge to the very existence of this sacred theatre. I have no doubt any deviation from the rules is virtually sacrileging this temple. बुलेटिन में अब बात लोकसभा की कार्यवाही की। अडानी मामले पर चर्चा की मांग और संभल में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में विजयी हुई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और महाराष्ट्र के नांदेड़ सीट से नवनिर्वाचित रविंद्र वसंतराव चव्हाण को शपथ दिलवाई। दोनों सदस्यों की शपथ के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू किया, लेकिन विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच इकट्ठे होकर अडानी मामले पर बहस कराने की मांग करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने गतिरोध के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ, क्या ब्रजराज नगर में NH 49 पर 4 लेन सड़क और आईवी नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव है और इन परियोजना के लिए कितना बजट आवंटित है? इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और यदि स्वीकृति नहीं हुई है तो देरी या अस्वीकृति के कारण क्या है? माननीय स्पीकर महोदय, ये जो अकॉर्डिंग टू नेशनल हाईवे हमारे यहाँ ये जो टोल प्लाजा है उसमें पूरा काम पूरा हुआ है। उसमें जो 60 मीटर के बारे में जो बात कही गई है, उसमें इस प्रोजेक्ट में बैरियर फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम AES लेन्स को हमने सेलेक्ट किया है और जिसके कारण अब इसके ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को अपने स्थान पर जाने का आग्रह करते हुए कहा कि एक ऐसे विषय उठाने की कोशिश की जा रही है जिससे अपने देश का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सदन में अवरोध नहीं रुका। तब सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप जिस मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभाव को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय दिया है और दूंगा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है, उन पर चर्चा करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठें। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देंगे, हर विषय पर देंगे, लेकिन ये गतिरोध का तरीका ठीक नहीं है। संविधान की 75 वर्ष के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, असहमति सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर दें, मैं आपको पर्याप्त समय
लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे। वे अदानी मामले पर चर्चा की मांग और संभल हिंसा को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारे लगाने लगे। इस बीच पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तिन्नटी ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। Few notices of adjournment motion has been received on different subjects. Honorable Speaker has disallowed all the notices of adjournment motion. Item number 3, Shri Suresh Gopi ji. Respected Speaker, sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Item number 4, Shri Thokan Sahu ji. महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। Item number 4, Shri Kiren Rijiju ji. Item number 5. Sir, with your kind permission, I rise to present the fourth report of the Business Advisory Committee. Item number 6, Shri V. Somanna ji. With your kind permission, I make a statement regarding status of implementation of recommendation contained in the 21st report and further action taken report contained in the 28th report of the Standing Committee on Water Resources 2022-23 on demand for grant 23-24 of Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti. Thank you, sir. विपक्ष का गतिरोध लगातार जारी रहने पर निराशा जताते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी दलों की बैठक में सदन में विधेयकों पर चर्चा कराने और उन्हें पारित कराने का उचित समय तय किया गया था। विपक्षी सदस्य नियमों को तोड़ रहे हैं। विपक्ष के इस व्यवहार की वो निंदा करते हैं। सारे विपक्ष के नेता और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सारे मेंबर्स मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष के साथ में हर बिल जो आने वाला है उसका समय भी तय किया था और सब मेंबर ने एग्रीमेंट करके हम लोगों ने फैसला किया हर एक बिल को उचित समय दे करके चर्चा करने का भी हम लोगों ने आग्रह किया और एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद बाकी मुद्दे जो आने वाले हैं उसके लिए भी चर्चा का अलग अलग नियम बनाया हुआ है, सबने एग्री किया है। यहाँ बिना रूल के और अपना ही बनाया हुआ रूल को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी और साथियों ने ये हंगामा करने का जो कोशिश किया है, मैं इसका निंदा करता हूँ। ये सही नहीं है। ये शीतकालीन सत्र को अच्छी तरह से चलाने के लिए सारे सदस्य, कई नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, पुराने हैं, सबने कहा कि अपना बात रखना चाहिए सदन में, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात को यहाँ चर्चा करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और साथियों ने इस तरह से हंगामा करके बाकी मेंबर्स का जो अधिकार को हनन किया है, मैं खंडन करता हूँ। दूसरे बात, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया। विपक्ष की ओर से सारे मेंबर ने रिक्वेस्ट किया कि जो भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हियरिंग किया है उसको और समय चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम उसको भी एग्री किया। आज टाइम एक्सटेंशन के लिए वक्त अमेंडमेंट बिल का जेपीसी का टाइम एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव मूव किया, तब भी खुद कांग्रेस पार्टी ये लोग हंगामा कर रहे हैं। गलत बात है सर, मैं इसका भी निंदा करता हूँ। पीठासीन अधिकारी गतिरोध कर रहे सदस्यों से शोर शराबा बंद कर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन शोरगुल फिर भी नहीं थमा। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। I
request all the honorable members to kindly return to their seat and allow the business to go ahead. Kindly please go back to your seats. सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 29 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त समिति को रिपोर्ट देने की समयावधि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके तहत समिति अब आगामी बजट सत्र तक रिपोर्ट दे सकेगी। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सदस्यों ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में समिति का गठन संसद के पिछले सत्र के दौरान किया गया था। इससे पहले सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के लिए आवश्यक विधेयक पेश किया था, जिस पर कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने गहरी आपत्ति जताई थी। इसके बाद सदन ने समीक्षा के लिए विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया था। Sir, I beg to move that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 up to the last date of the budget session 2025. Support to you. The question is that motion may be adopted. Those in favor may say A. Those who may say against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए संसद टीवी।